हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। ना आप लोगों ने कल एक न्यूज देखा होगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने एक न्यूज दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डॉक्टर एस जयशंकर विल बी अटेंडिंग द एससीओ मीटिंग एट पाकिस्तान, राइट। एंड ये अक्टूबर 15th एंड 16th को है। डॉक्टर एस जयशंकर टू visit Pakistan for annual Shanghai summit on October 15th and 16th. Now, this is a interesting news because Prime Minister Modi was invited as head of the state, but a confusion था जाना है या नहीं जाना है. And finally, yesterday it was decided that Dr. Jaishankar will be representing India in this meeting. Now, this is the news because people are following it world across. So, India's Foreign Minister Dr. S. Jaishankar will attend the meeting of Shanghai Cooperation Organization in Pakistan this month, right? This will be the first visit by high-ranking Indian minister to Pakistan in a nearly a decade. मतलब 10 साल के बाद, 10 साल से भी ज्यादा के बाद somebody is visiting from India of this high-level official, right? Now the trip comes after Dr. Jaishankar, Pakistani counterpart, attended a similar meeting of foreign ministers for the SCO in India last year. He was the first senior Pakistani politician to visit India since 2011. So, you know किसके बारे में बोल रहे हैं? वो बिलावल भुट्टो के बारे में बोल रहे हैं। और आपको पता है वो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उनसे हाथ भी नहीं मिलाया था, and he made some very stupid statement, है ना, जो भी आपको पता होगा. So anyway, that's okay. So that is it. So in that way, this is interesting because India is going to Pakistan to attend this conference, multinational conference. It's not a bilateral, it's a multilateral event. So by itself, it is very, opposition भी बोल रहा है कि एक साइड से तो बोलते हैं the era of uninterrupted discussion dialogue with Pakistan is over और जयशंकर जा रहे हैं. What we have to understand is it is a multilateral conference, not a bilateral. It's not a discussion between India and Pakistan, so it has its own relevance. ना opposition जो भी बोले. What makes it interesting is मैं आपको दो वीडियो क्लिपिंग दिखाऊंगा. एक डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के बारे में क्या बोला था about that uninterrupted discussion वाला, and second इस मीटिंग के बारे में जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप जा रहे हो, क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दो वीडियो का क्लिपिंग दिखाऊंगा. उसके बाद इस वीडियो को आगे लेके चलेंगे, राइट. सो लेट्स लिसन टू वीडियो नंबर 1 जिसमें कि पाकिस्तान के इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था. Era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. The issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. We are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences, and insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. So the era of uninterrupted discussion with Pakistan is over. Second line is very powerful. Actions have consequences. है ना, मैं अपने SML में एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, लॉ ऑफ कर्मा. So actions have consequences. So this is where India and Pakistan का relationship stands ever since Uri and Pulwama हुआ. एंड इमरान खान ने तड़ी में आके ट्रेड बंद कर दिया, ट्रेन बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया. नाउ द पाकिस्तान वांट्स टू इन्वॉल्व विद अस बायलैटरली, बट वी हैव टेकन दिस वेरी फर्म स्टैंड. द एरा ऑफ uninterrupted discussion with Pakistan is over. Actions have consequences, very strongly conveyed. Let's look at the second video, जो कि एक रिपोर्टर ने एससीओ के बारे में जब इन्होंने डिसाइड किया कि जा रहे करके, जब वो स्पोक्स पर्सन ने बोला तो इनसे किसी ने पूछा होगा तो उसका क्या जवाब दिया देखता. We'll discuss that, लेकिन पहले let's see the video, right? Am I planning for it? Of course I'm planning. In my business you plan for everything which you're going to do and for a lot of things which you're not going to do.
But I do want to say to leave for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So, yes, I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the higher level meeting, the heads of state, and one of us, it changes. Usually, one of the ministers goes for the heads of government meeting. So that's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. So your question, I think, as I understood it, was, am I planning for it? Of course, I'm planning for it. In my business, you plan for everything which you're going to do and for a lot of things which you're not going to do, and which could happen also. I mean, you plan for that as well. I expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such. And I think we'll deal with it. But I do want to say to leave for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. तो बड़ा क्लियर है, इन्होंने अपना जाने का उद्देश्य बड़ा क्लियर कर दिया है कि ही इज सिंपली गोइंग बिकॉज एससीओ मीटिंग इट्स ए मल्टीलेटरल मीटिंग एंड ही इज नॉट गोइंग देयर फॉर एनी बायलैटरल टॉक. तो अगर पाकिस्तान कोशिश करता है कि एससीओ के साइडलाइंस में इंडिया पाकिस्तान के कुछ काउंटरपार्ट मिलकर बातचीत कर ले, वो होने की संभावना बिल्कुल नहीं है. वो क्लियर कर दिया है. एंड नेचुरली इस टोन से जब वो जाएंगे तो इट इज वेरी ऑकवर्ड फॉर पाकिस्तान हाउ टू डील विद जयशंकर. डॉक्टर जयशंकर वैसे भी वन लाइनर्स मारने में उस्ताद है. आपको पता है वो यूरोप वाला स्टेटमेंट, यूरोप मस्ट गेट ओवर द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम. सो मेनी ऑफ देम वी आर सो हमें उनके पंच लाइन बड़ा अच्छा लगता है. बट द पॉइंट इज कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ही इज गोइंग देयर, बट दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज इंडियाज पोजीशन एज फार एज इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप इज कंसर्न. नाउ मेरा इस पूरे चीज को उठाने का रीजन ये है कि आप लोग अभी एसएसबी जा रहे हो एंड अगर आपका 1-1.5-2 महीने के अंदर है तो डेफिनेटली यू कैन टेक इट कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप एंड द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस, ट्रेड रिलेशनशिप, पाकिस्तान का बलूचिस्तान इशू, सर क्रीक प्रॉब्लम, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑल दोस थिंग्स आर ऑलवेज अ हॉट टॉपिक एसएसबी के लिए क्योंकि आप मिलिट्री लीडरशिप के लिए जा रहे हो. You expect to know this. Now इसमें SCO का ये मीटिंग it becomes important because this is going to be discussed. इट इज लाइक जो भी इवेंट हो रहा है, शेख हसीना इधर आई है, यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको बांग्लादेश का उससे कनेक्टेड इश्यूज के ऊपर बातचीत आएगा. ईरान इजराइल में एस्केलेट होके कहाँ पहुंच गया उसके ऊपर आपसे पूछा जाएगा. क्या बोलते हैं, यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई है वो एक लेवल पे पहुंच गया है. सो दीज थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट कि करंट अफेयर्स इसके ऊपर आपसे पूछा ही जाएगा. एंड मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम ओनली टेकिंग एससीओ के ऊपर बिकॉज दैट्स टॉपिक दैट वी हैव टच्ड. But I will request you and recommend you to prepare all current topics that is happening between the last 5-6 months. And अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है इस वीडियो से कोई वैल्यू मिल रहा है या एक डायरेक्शन मिल रहा है कैसे तैयार करना है, तो यू कैन टेल मी एंड आई विल मेक वीडियोस ऑन दिस. बिकॉज मैं इन वीडियोस पे पहले काम नहीं करता था बिकॉज दिस वीडियोस आर ऑलरेडी अवेलेबल. आप क्या बोलते हैं, जनरल यशमोर सर बनाते हैं. देयर आर सो मेनी स्टडी IQ है, देयर आर गणेश प्रसाद है, उसके बाद वो खान सर है, स्टडी IQ एंड एकेडमिक वीडियो. देयर इज नो डेप्थ ऑफ कंटेंट एज फार एज करंट अफेयर्स इज देयर बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा तकलीफ होता है जब बच्चे मेरे पास आते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, खासकर ऑफलाइन में, दे कम अनप्रिपेयर्ड. और बताने के बाद भी उनको प्रिपेयर करने में तकलीफ है या रेजिस्टेंस है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना है या समझ में नहीं आता कैसा आना है. सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक ऑन इट माई सेल्फ. एंड इनफैक्ट उसी सीरीज में मैंने 3 वीडियोज ऑलरेडी डिफेंस के ऊपर, नो योर इंडियन आर्म फोर्सेस में 3 वीडियो बना दिया है. इंडियन आर्मी के ऊपर हिस्ट्री में पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑल दोस थिंग्स, रैंक स्ट्रक्चर, वो सब बनाया. अच्छा रेस्पॉन्स भी आया. बट आई थिंक ये आपको खुद करना है. बट अगर आपको ये मैंने बना के देना है तो आई विल डू दैट. बट आई विल रिक्वेस्ट यू, मेरे पास जो आएगा इसको करके आओ
only then I can focus on the self management leadership के classes and जो SSB के testing tools के डेल्टा को भरने का काम. Otherwise आप यही इन्हीं current affairs में उलझ के रह जाते हो. So I've decided to make a series of these current affairs videos जिससे के थ्रू आपको काफी clarity मिलेगा और बहुत simplified language में बताऊंगा. I'll not make it very complicated because first of all I'm not a military historian, तो मुझे तो आधी चीजें खुद ही पढ़ के कर रहा हूँ. जो काम आपको करना वो काम मैं कर रहा हूँ, so that it helps me. बेसिकली मैं आपको हेल्प करने के पीछे मेरा एक सेल्फिश इंटरेस्ट ये है कि एटलीस्ट आप ये वीडियो देख के जब मेरे पास आओगे तो मेरा आई कैन फोकस मोर ऑन द कोर ट्रेनिंग, that is developing the self. So I will request you to increase your breadth and depth of knowledge before you go for the SSB. The breadth and depth of knowledge in various dimensions, knowledge about the self, you must do your SWOT analysis. अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिखो comment box में, and I'll see if I can do it here. It's a part of the SML का thing, but I can still do it part of it. You must know about the organization. जिस organization में जा रहा है उसके बारे में in-depth knowledge. Then current affairs, geopolitics, defense-related knowledge, India and its neighbors, India and its international relationship. All those organizations जिसके India हिस्सा है. A lot of things are happening in and around India. है ना, इंडिया के चारों तरफ जो है बहुत हर नेबर किसी ना किसी पंगे में फंसा हुआ है ना. श्रीलंका में प्रॉब्लम, पाकिस्तान तो एवरग्रीन प्रॉब्लम, म्यांमार में प्रॉब्लम, बंगाल में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में प्रॉब्लम, नेपाल इज डूइंग पंगा. whole lot of things are happening around us, so you must do it and text me here. and अगर आपको लगता है इस वीडियो से वैल्यू मिल रहा है, so I'll continue making it. अगर आपका कमेंट्स अच्छा आता है, कमेंट नहीं आता तो फिर क्या लिखूं, मेरे लिए भी तो मोटिवेशन चाहिए. Anyway, let's come back to this video. So I will request you to do this particular topic, SEO. इसका अभी इस मीटिंग को फॉलो करना. 14-16 को 14-15 को ये मीटिंग है पाकिस्तान में. So a lot of things will be happening, lot of media interaction will be there. ये इससे आपको इंडिया पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है, चाइना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस SEO, तो ये पूरा चीज किस साइड में जा रहा है, सॉरी, उसका एक सही समझ मिलेगा. एंड आई विल आल्सो मेक वीडियोस ऑन दैट इफ यू वांट. और इसको करने से आपको ग्रुप डिस्कशन के जो ग्रुप डिस्कशन 1 है which happens on national issues and international issues, उसमें बहुत मदद मिलेगा. उसके अलावा लेक्चरेट में you can take a topic which is concerning this current affair rather than my hobby and my dog या my movie करने की बजाय आप एक अच्छा बढ़िया टॉपिक के ऊपर करोगे तो लगेगा कुछ बंदा तैयारी करके आया. एंड उन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू ना. आप लोगों को पता है इंटरव्यू विल बी टेकन बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ मेजर जनरल ऑब्लिक कर्नल, एंड वो उनके पास 2-3 न्यूज़पेपर आता है, दे रेफर टू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और आप उसके पास जाके सॉरी सर आई डोंट नो बोलोगे, उसकी जगह में इसको करके जाओगे तो इट विल ट्रेमेंडसली ऐड वैल्यू टू योर परफॉर्मेंस, राइट. उसी तरह से ग्रुप डिस्कशन में आप अगर बैठ के आई एग्री विथ यू, GTO सर हैज गिवन वेरी गुड टॉपिक फॉर डिस्कशन, लेट्स हैव ए गुड डिस्कशन, ये सब बोलने से क्या फायदा. यू नीड टू हैव कंटेंट टू मेक अ वैलिड impact on the group as well as on the GTO. So let's do it here. So I'll request you to kindly pay special attention to this topic and all current affairs topic जो भी अभी हाल फिलहाल में हो रहा है. If required, I'll make a video on that, right? So let's come to Shanghai Cooperation Organization. This is the logo. जैसे आर्मी का लोगो, एयरफोर्स का लोगो है, उसी तरह से ये SEO का लोगो है. Now this is the website. This is the official website of the SEO. अगर जो मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, you can go there and find out. Now इससे पहले कि हम आगे चले, I want to make an announcement that Air Force का जो next 2 weeks का ऑफलाइन बैच है, रेजिडेंशियल बैच नागपुर में जो होता है वो 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 19 अक्टूबर तक. इसको रिपोर्टिंग डेट 6 है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि सर कैन वी कम ऑन 7/8. यस, यू कैन कम ऑन 7/8 बट डोंट डिले इट बियॉन्ड 9 बिकॉज फिर वो कवर करना मुश्किल हो जाता है. 2 दिन का डिले को वी कैन क्लियरली कवर इट बिकॉज रेजिडेंशियल बैच है. सो 7 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर, इसका रिपोर्टिंग 6 को है. And in case we're able to come till 7th or 8th, that's perfectly fine. The departure will be on 19th October/20th October afternoon या 19 को आफ्टरनून या 20th अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग आप लोग डिपार्ट कर सकते हो. You can plan it. So once again, the next batch duration is 7th October to 19th October. Reporting is on 6th, डिपार्चर ऑन 19. इसके बाद में कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि सर अक्टूबर के बाद कौन सा बैच होगा, तो पहले नवंबर का बैच वाज नॉट प्लान्ड बिकॉज ऑफ माय नॉन अवेलेबिलिटी एंड सम कमिटमेंट ऑफ ट्रेनिंग कमिट के कारण, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होने के कारण नवंबर का बैच इज अगेन प्लान्ड. इट इज प्लान्ड फ्रॉम 11th नवंबर टू 23rd नवंबर. तो जो लोग भी अक्टूबर के बैच में नहीं आ पा रहे, kindly come for the November batch, that is from
11th नवंबर 23rd नवंबर, महीने में एक ही बैच होता है ऑफलाइन और बाकी इज अवेलेबल ऑनलाइन. सो अगर जो लोग ऑफलाइन में इंटरेस्टेड है, प्लीज कम. इंसिडेंटली ऑफलाइन इज डेफिनेटली बेटर देन ऑनलाइन. इवन दो ऑनलाइन में अच्छा है, लेकिन जीटीओ वगैरह ऑनलाइन में बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ग्रुप के साथ डिस्कशन, डायनेमिक्स, और मेरा अपना कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज आप लोग वीडियो ऑफ कर दियो, कभी कभी इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया एंड ऑल दैट. सो डेफिनेटली ऑनलाइन इज मोर बेटर देन ऑफलाइन. Sorry, उल्टा बोल दिया. Offline is better than online. So consider that. So next November batch is from 11th November to 23rd November. इसका reporting 10th November को, which is a Sunday, and departure will be on 23rd afternoon या 24th अर्ली मॉर्निंग. आप कर सकते हो. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, खासकर जो अभी एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड एसीसी 131 वाले, जिन लोगों का ये दिस आर दोस एंट्रेंस टेस्ट वाले बैच है, प्लीज प्रिपेयर वेल. एंड अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, प्लीज कम. यू विल गेट 500% क्लैरिटी. आपने जो पिछले 3-4 वीडियो से आपने देखा होगा कि किस डेप्थ में हम काम करते हैं. इट कैन बी डन. ओनली थिंग इज आपके अंदर विलिंगनेस होना चाहिए काम करने के लिए और अपने आप को कंफर्ट जोन से पुश करने के लिए, बजाय कि इजी टिप्स एंड ट्रिक्स और ये कर लो, वो ये छुपा दो, कोर क्वालिटी छुपा दो, वो सब तरीके की जगह लेट्स डू इट द वे इट इज सपोज्ड टू बी डन. मजबूर कर सकते हैं हम एसएसबी को अपने आप को रेकमेंड करने के लिए. सो वंस अगेन 11th नवंबर से 23rd नवंबर, राइट. एंड ये नागपुर में साहस द कैंप यहाँ पे होगा. दिस इज द सेम बिल्डिंग. इसको आप गूगल मैप में चेक कर सकते हो, साहस द कैंप मारना. तो दिस इज द एड्रेस, रामा डैम नागपुर में है. एंड इसमें रजिस्टर करने के लिए दिस इज नंबर ऑन विच यू डू व्हाट्सएप मी 9090099035 पे व्हाट्सएप करना या कॉल करना. आई विल गिव यू ऑल डिटेल्स एंड इफ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन अगेन कॉन्टैक्ट मी, है ना. एंड अर्ली फर्स्ट 25 कैंडिडेट्स को, फर्स्ट 25 जो कैंडिडेट्स है अर्ली बर्ड, उनको 2500 रुपीज का इस बैच में भी, नवंबर बैच में भी डिस्काउंट होगा. सो हरी अप एंड अवेल दिस फैसिलिटी एंड मेक श्योर you know do advanced registration to avail this, है ना. kindly share this information with the friends so that they also benefit. इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस जो है 21st October onwards, मतलब after this offline batch starts, it will start. So you can again contact me on this and I'll share you the details. And इसको भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना so that they also benefit, right. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के बीच में if you ask me, I'll suggest you for offline because this is too much of an engagement. Residential batch, morning 6 o'clock to 11:30 तक something is happening. I am there full time. ऑनलाइन में 2 घंटे का क्लास, उसके बाद क्लास एंड, फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. I'll suggest you, खासकर अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल, करंट अफेयर्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट में कंफ्यूजन है, थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन ज्यादा है, प्री कंसीव्ड नोशन ये सब ज्यादा है, तो ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन आने का प्री कंसीव नोशन वगैरह ज्यादा है, तो आई सजेस्ट यू कि ऑफलाइन बैच विल बी मोर प्रेफर्ड एंड एज कंपेयर टू ऑनलाइन. ठीक है ना. ऑनलाइन उन लोगों के लिए ठीक है जिनको छुट्टी नहीं मिल रहा, जो जॉब में है या कुछ और है. अदरवाइज आई सजेस्ट यू फॉर ऑफलाइन, राइट. सो लेट्स मूव फर्दर. इसके अलावा देयर आर कपल ऑफ वीडियोस, है ना. मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, 300-400 वीडियोस है. कंफ्यूजिंग हो जाएगा बिकॉज प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है. तो यू कैन एक्चुअली गेट अ सीरीज ऑफ लिस्ट ऑफ वीडियोस पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि एफओसीपी के टेलीग्राम चैनल पे है. आप उसको मेरे नाम से चेक कर सकते हो या ये मोबाइल नंबर से सर्च करके इन वीडियो को देखने से आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा. एक्चुअली ये जो लिस्ट है ये इट इज मोर अपडेटेड एंड मोर ऑर्गेनाइज. सो प्लीज गो थ्रू इट एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड उसको टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो. अगर प्रॉब्लम हो तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना, आई विल शेयर यू. एंड इस पीडीएफ को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, राइट. इसके अलावा अगर आपने एफओसीपी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, शेयर इट विद फ्रेंड्स, डू पोस्ट योर कमेंट, बिकॉज योर कमेंट्स को मैं जब पढ़ता हूँ मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और एक ऐसा आभास भी होता है कि आप लोगों को इन वीडियो से फायदा हो रहा है ना. सो अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज कमेंट इट, एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना. यू मस्ट डू इट राइट नाउ, सब्सक्राइब इट एंड देन ओनली मूव फर्दर, राइट. सो लेट्स कम बैक टू आवर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मीटिंग के लिए Dr. S. Jaishankar is going to Pakistan. Very interesting event that's going to happen in terms of India's representative going to Pakistan, right? So
Let's understand ये SCO है क्या. So SCO, Shanghai Cooperation Organization, it is a Eurasian political, economic and international security and defense organization established by China and Russia in 2001. So this is very interesting. It is a SCO is a Eurasian political economic international. So ये what is Eurasia? So यूरोप प्लस एशिया का कॉम्बिनेशन है यूरेशिया. बिकॉज आपको पता है, यहाँ देखो ये जो बॉर्डर दिख रहा है, रशिया है, इधर चाइना है, इधर इंडिया है एंड पाकिस्तान, ऑल दोस थिंग्स. सो इसमें यूरोप के कंट्रीज भी है एंड एशिया के कंट्रीज भी है. सो दैट्स वे दिस वर्ड यूरेशिया. सो एससीओ इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल economic international security and defense organization established by China and Russia in 2001. और इसको establish करने का उद्देश्य क्या था? इसको establish करने का उद्देश्य ये था, the SCO is often seen as a counterbalance to the Western influence. West में क्या? European Union and NATO. ना, अब NATO इज ए मिलिट्री अलायंस, यूरोपियन यूनियन इज एक इकोनॉमिक अलायंस. आपको पता है उनका यूरो है, उसके अंदर जो भी आप ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रिटेन उससे निकल गया. एनीवे दैट्स ओके. सो एससीओ को एक काउंटर बैलेंस देख रहे हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से, बट एक्चुअली विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इसके एससीओ के अंदर पाकिस्तान और चाइना है. पाकिस्तान और चाइना और इंडिया भी है. पाकिस्तान और चाइना एक साइड में और इंडिया एक साइड में हो जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा चलता नहीं है. आपको पता है कि पाकिस्तान के प्रेजेंस से अपने सार्क का क्या हुआ, बर्बादी हो गया ना. एशियन एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेल, बट सार्क इज गॉन बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान का एंटी इंडिया एटीट्यूड. और अभी तो पाकिस्तान एंड चाइना दोनों है. बट एनीवे 2001 में ये बनाया है और उसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड कपल ऑफ अदर कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट. बट जब बना है तो लोग इसको, वेस्टर्न वर्ल्ड इसको कैसे देखता है? एससीओ इज ऑफन सीन एज अ काउंटर बैलेंस टू द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस. यूरोपियन यूनियन एंड नाटो, दिस इज द वेस्ट के दो बिग ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम जानते हैं, राइट? है या नहीं है, दैट्स ओके, बट इट इज परसीव लाइक दैट. लेट्स मूव फर्दर. सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में. सो शंघाई जो है वो कहां पे? चाइना में है. सो इसका हेडक्वार्टर कहां पे? बीजिंग, चाइना में. नाउ ही इज द जनरल सेक्रेटरी, करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ एससीओ इज, क्या नाम है? हांग जियांगमिंग, जियांग हांग है जो भी है, जियांगमिंग. ही इज अ चाइनीज डिप्लोमेट. ये करंट सेक्रेटरी जनरल है एससीओ के, है ना. वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप मुझे टेक्स्ट में बताना. नाउ इनिशियली जब ये 1996 में कंसीव किया था, इसको शंघाई 5 बोलते थे. जैसे G7 है, G20 है, शंघाई 5 बोलते थे. और इसमें ये ओरिजिनल जिन लोगों ने इसको कंसीव किया था उसमें चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रशिया था, तजाकिस्तान था. आपको पता है ये सारे जो है ये सारे पहले अर्स्टवाइल यूएसएसआर के पार्ट्स थे. और उसके बाद जब रशिया का, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो रशिया अलग हो गया. और ये कितने प्रोविंस अलग हुए बताना? अभी जो यूक्रेन में चल रहा है, यूक्रेन वाज आल्सो अर्स्टवाइल यूएसएसआर का हिस्सा था. तो मुझे बताना पहला दो चीज, किस साल में हुआ और यूएसएसआर कितने टुकड़ों में बटा. एंड उस टाइम एक मिखाइल गोर्बाचोव करके एक क्या बोलते हैं, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट होते थे, जैसे आज पुतिन है. एंड उनके कुछ पॉलिसीज, कुछ डिसीजंस के कारण पूरा वो हो गया. तो आप उसको देखना, राइट? सो दे वर दी ओरिजिनल 5, जिसके कारण इसका नाम था शंघाई 5. बट देन बाद में इसका नाम एससीओ पड़ा जब इसमें 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान भी 2017 में, ईरान 2023 में एंड बेलारूस 2024. एक बार मैप में इसको देखना, इनका लोकेशन कहां पे, देन यू विल अंडरस्टैंड यूरेशिया, एशिया एंड यूरोप के कॉम्बिनेशन यूरेशिया. नाउ व्हेन यू सिर्फ चाइना और इंडिया को ही पकड़ लो तो इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ द geographical spread, this is a phenomenal organization because of the volume of land mass and the economy and the population that it represents. Unfortunately, the presence of China, Pakistan on one side and India on the other side, this organization has their own problems also. We'll see that in the subsequent slide. Now, so these are the member state, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा. These are the member state. इन member states के अलावा इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है. एंड इसमें फिलहाल है अफगानिस्तान एंड मंगोलिया. अफगानिस्तान सिर्फ 2021 is not very active. और बेलारूस was also an observer, but very recently it has been
इंक्लूड एज ए मेंबर स्टेट। ऑब्जर्वर के अलावा इसके अंदर एक डायलॉग पार्टनर्स भी है जो इस विल सी व्हाट इज द डिफरेंस। और उसके अंदर आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, कंबोडिया, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, कतार, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, टर्की एंड यूनाइटेड अरब अमीराट्स ये भी इंक्लूडेड है। आई थिंक दे आर 14 ऑफ देम। सो 9 मेंबर्स, 2 ऑब्जर्वर्स, अभी आई थिंक एक आध और बढ़ गया तो आई एम नॉट वेरी अपडेटेड, मस्ट बी, अगर कोई हो तो आप लिख के बताना। एंड अबाउट 40 डायलॉग पार्टनर। नाउ व्हाट इज मेंबर्स आर मेंबर्स, जैसे इंडिया इज अ मेंबर, ऑब्जर्वर्स आर दे अटेंड दीज मीटिंग्स एज एन ऑब्जर्वर, जैसे यूएन ऑब्जर्वर होता है, बट दे डोंट टेक पार्ट, दे डोंट टेक पार्ट, बट दे आर इन अटेंडेंस, ऑब्जर्व कर सकते हैं। Whereas dialogue partners are not members, they are not members, but they attend these meetings, SEO का, and they take part in the dialogue process. तो उनके अपने इंटरेस्ट को भी आगे रखते हैं एंड ग्रेजुअली डायलॉग पार्टनर्स को अपग्रेड करके, जैसा बेलारूस है वो मेंबर्स बन जाएंगे, ऑब्जर्वर विल बी अपडेटेड एंड बिकम डायलॉग पार्टनर, सो दैट्स अ चेन, इट हैपेंस। इसके अलावा देयर आर गेस्ट अटेंडेंस। इसके अंदर फिलहाल एशियान, कॉमनवेल्थ, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तुर्कमेनिस्तान एंड यूनाइटेड नेशंस इसमें गेस्ट बन के ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल देयर इज म्यूचुअल इंटरेस्ट है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, क्या हो रहा है देखने के लिए। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर ना। तो आपको एशियान क्या है इसको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज लीग ऑफ नेशन पहले था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना। आज यूनाइटेड नेशन की भी धज्जियां उड़ी हुई है। जयशंकर साहब ने बोला था कि इट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस एंड इंडिया भी अपना परमानेंट सीट के लिए क्लेम कर रहा है। इट्स मेकिंग सम वेरी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स। देयर आर अदर्स सपोर्टिंग अदर देन चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान चलो इज नॉट अ पार्ट ऑफ P5। P5 में एक आदमी जो ब्लॉक कर रहा है वो है चाइना। एंड चाइना का भी वो चाइना भी हमारे जाल में फंसा हुआ, बिकॉज उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा बिकॉज ही इज नॉट सिग्नेटरी टू वन ऑफ दोस थिंग। बताना क्या है जिसमें कि इंडिया के पास वीटो है, तो जब तक इंडिया उसको अलाउ नहीं करेगा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स उनको नहीं मिलेगा। बताना व्हाट इज दैट एग्रीमेंट जिसमें उन्होंने साइन नहीं किया, बट इंडिया इज अ सिग्नेटरी एंड इंडिया के पास उसका वीटो, तो इंडिया ने उनको ही जाल पे लपेट लिया। Anyway, we'll see that, but this आपको पता बहुत जोर चल रहा है। So this is another topic, permanent seat for UN Security Council India के लिए, जो कि आप अच्छे से तैयार करना, because this will be a topic of discussion and there's a high probability कि आपका इसमें आए, किसमें, इंटरव्यू में या इवन ग्रुप डिस्कशन में आने का चांस है। Let's see SEO का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से संघाई कॉर्पोरेशन को फॉर्म किया था। सो देयर आर कपल ऑफ एम्स, स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ना। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, बट आई टोल्ड यू पाकिस्तान और चाइना एक साइड में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया हो तो ये सब एक साइड लेफ्ट राइट चला जाता है। पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बोला है, अभी जाते जाते बोला है डायलॉग अनइंटरप्टेड डायलॉग बंद, अभी जाके बोल रहे कि भैया पाकिस्तान जा रहे हैं बट मल्टीलैटरल। यू कैन सी द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशन दैट शेयर एंड इवन विद चाइना के साथ वी हैव लॉट ऑफ इश्यूज, अरुणाचल, डोकलाम, लद्दाख में इशू है ना, सर क्रीक बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, साउथ चाइना सी का इशू, इंडियन ओशन में इश्यूज, हमन टोटा पोर्ट है ना, म्यांमार में इशू, ग्वादर पोर्ट, इधर उधर, वी नो काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दैट वी शेयर विद, एंड प्लस चाइना का इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म पॉलिसी। आई एम श्योर आपको ये कर लिया होगा, नहीं किया हो तो कर लेना या मुझे बताना, आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट, राइट। नेक्स्ट इज प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एम्स तो बहुत अच्छे हैं। एनहांस कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल टाई, बहुत बढ़िया। काउंटर टेररिज्म बताओ भैया, पाकिस्तान को एक साइड में एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बोलते हैं और फिर काउंटर टेररिज्म के लिए संघाई कोऑपरेशन के हम दोनों मेंबर है ना। सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, दैट्स ओके, ऑब्जेक्टिव है। फॉस्टर म्यूचुअल ट्रस्ट है ना, मजाक नहीं लग रहा। अंडरस्टैंडिंग अमंग मेंबर स्टेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स है ना, अच्छा सुनने के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का ना, उसी तरह से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसके सबसे ऊपर काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट है, जैसे कि प्रेसिडेंट या हमारे केस में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारे केस में यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, देन ये एंटी टेररिस्ट, होल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो दिस इज ए क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एसईओ। इसको आप ज्यादा एसईओ के वेबसाइट में जाके देख सकते हो, बट मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ क्या है। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर अपना डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं, इस लेवल पे जा रहे हैं, इस लेवल का एनुअल मीटिंग होता है, इस लेवल का मीटिंग
हर साल होता है एनुअल मीटिंग, तो यहाँ पे एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, सो ही इज गोइंग एंड ही हैज ऑलरेडी क्लियर्ड कि किस लिए वो जा रहे हैं. सो लेट्स सी ये. सो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट है ना, हेड्स ऑफ स्टेट का क्या है, दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी. तो जो 9 कंट्रीज है, 9 कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट पब्लिक प्राइम मिनिस्टर है, दे आर द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर म्यूचुअल डिस्कशन. तो द नेक्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है ना, यहाँ पे फोकस ऑन इकोनॉमिक ट्रेड एंड कोऑपरेशन, एंड ये इसका एक एनुअल मीटिंग होता है, जो मीटिंग अभी नेक्स्ट पाकिस्तान में होने वाला है, जिसके लिए डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं. नेक्स्ट लेवल पे काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, डॉक्टर जयशंकर का लेवल ये है, लेकिन वो मीटिंग इस लेवल पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की जगह पे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यहाँ का डिसीजन है या यहाँ का डिसीजन है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम इस लेवल का है. इंप्लीमेंटेशन मतलब ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना. तो उसके अलावा कंसिडर इश्यूज रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज ऑफ एससीओ, प्रिपरेशन ऑफ मीटिंग्स ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट. सो इसका मीटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर है, तो सारे स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर्स अपना एजेंडा देना एंड ऑल द थिंग, वो भी यहाँ पे है. प्रिपरेशन ऑफ मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल एंड होल्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम विद द ऑर्गेनाइजेशन. एससीओ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको होल्ड करना, इंटरनेशनल प्रॉब्लम को डिफाइन करना, डिस्कस करना, ये सब करने का काम भी किस लेवल पे, इस लेवल पे. सो एक फंक्शनल लेवल पे ये हेड्स ऑफ स्टेट के लेवल पे, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है, कॉम्बैट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म. मजाक लगता है विद पाकिस्तान एंड चाइना. चाइना टेररिज्म में तो नहीं है, बट दादागिरी तो करता है. पाकिस्तान तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बोलते हैं. तो बढ़िया बना तो दिया, लेकिन आई डोंट नो हाउ फंक्शनल इट इज. एंड यहाँ पे बाकी सब आप देख लेना. उसमें ये जो है, ये है सेक्रेटरीट, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बेस्ड इन बीजिंग, विच इज दी एससीओ का हेडक्वार्टर है, और उसमें दिस पर्सन इज द सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ एससीओ, जिसका भी हमने ऑलरेडी पहले बात कर लिया. नाउ लेट्स सी, जब ये फॉर्म हुआ है, इसके एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है. जब इसको देखोगे थोड़ा मजाक लगेगा, फॉर द सिंपल रीजन पाकिस्तान एंड चाइना ऑन वन साइड, इंडिया ऑन द अदर साइड, बट देन दिस इज द ऑब्जेक्टिव विथ विच दिस वाज फॉर्म्ड, है ना. सो सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी. आप नोट्स बना लेना इसका यार ना. इकोनॉमी में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, राइट. एनर्जी में ऑयल, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी सिक्योरिटी, दीज आर द एरियाज ऑफ कॉपरेशन जिसके लिए बना है. ट्रांसपोर्टेशन में रोड, रेल, एयर, सी कनेक्टिविटी. ना आपको पता है वन रोड, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो भी इसी का पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड ऑल दैट स्टफ. और आपको ये भी पता है कि इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी इन दैट, बिकॉज ए पार्ट ऑफ दैट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज पासिंग थ्रू पीओके, है ना, जो इंडिया का क्लेम है कि वो क्लेम क्या वो हमारा है. सो दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी इन दैट. बट एनीवे, उसके ऊपर अभी बात नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा. आप लोग आई एम श्योर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव सबको अच्छे से करके जा रहे हो. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, डायमंड ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड, ये सब अच्छे से कर रहे हो. अंडमान निकोबार का मिलिट्री डेवलपमेंट एंड ट्रांसशिपमेंट हब एंड ऑल दोस थिंग कर रहे होंगे, उम्मीद है. अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की वीडियो उन टॉपिक पे भी मेरे को बनाना, तो मुझे बताना, मैं धीरे धीरे उनको बिल्ड कर दूंगा. बट आई एक्सपेक्ट दैट एटलीस्ट जो बच्चे एयरफोर्स के लिए आएंगे वो इसको करके आएंगे. अगर मैं इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद इसलिए बना रहा हूं कि आपको ट्रिगर करे, तो आप तो एसएसबी जा रहे हो, यू हैव टू डू इट यार. दिस इज नॉट माय डोमेन. इतने सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उसके बावजूद मैं आई एम फोर्स्ड टू डू इट बिकॉज मुझे बड़ा तकलीफ होता है जब मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं बोलता हूँ यार इसको करो, हाँ सर करेंगे. अरे उनको पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू करना है. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस एंटायर नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज करंट अफेयर्स रिलेटेड, उसको बिल्ड करके फ्री में अवेलेबल कर रहा हूँ. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, है ना. लास्ट इज कल्चर, एजुकेशन, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज. सो अगर आपसे इंटरव्यू पूछा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव या एरियाज ऑफ अचीवमेंट. एससीओ कुछ अपने क्लेम्स भी करता है कि हमने ये सब अचीव किया. सो देख लेते क्या अचीव किया है. रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ना, रीजनल रैट्स बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट एक्ट एस्टैब्लिश इन 2004, जो एक डब्बा दिखाया था मैंने ना. तो एंटी टेररिस्ट तो लिखा है, लेकिन एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान, है ना. सो एससीओ समिट हेल्ड एनुअली सिंस 2001. सो ये एक अच्छा चीज हो रहा है. 2001 के बाद से ऑलमोस्ट रेगुलरली एससीओ का मीटिंग हो रहा है. ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. अदरवाइज
कभी पाकिस्तान इधर नहीं आएगा, कभी हम उधर नहीं जाएंगे, कभी चाइना एंड ऑल दो स्टफ इज देयर, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अमंग मेंबर स्टेट, कहाँ पे मजाक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? हमने तो पाकिस्तान ने तो हमसे ट्रेड ही छोड़ दिया। इमरान खान साहब जेल जाने से पहले, बालाकोट के बाद में वो सब कट ही कर दिया। ठीक है भैया, कट कर दिया, अच्छी बात है। सो द पॉइंट इज कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सब बोलने की बात है, बट वी हैव लॉट ऑफ इश्यूज बोथ विद चाइना एंड पाकिस्तान। आपको पता है चाइना का क्या एंटी डंपिंग पॉलिसी है ना, उसको anyway we'll not discuss that, this is a separate topic altogether. Next is, you know, SCO interbank consortium established in 2025 है ना, because SCO में इतना पॉपुलेशन है, इतना जोग्राफिकल स्प्रेड है और इतना इकोनॉमी में चाइना इंडिया को मिला के देख लो कितना बड़ा हो जाता है। सो एक इंटर दिस मेंबर्स कंट्री के लिए एक बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल दैट, जैसे अभी ब्रिक के भी बारे में बनने की बात चल रही है उस तरह का। एंड एक और चीज है, एससीओ का एक यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश हुआ 2009 में चाइना में, जिसमें कि एससीओ कंट्रीज के मेंबर्स जो है वहां जा सकते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम एंड ऑल दैट। आई डोंट नो हाउ इफेक्टिवली इट इज रनिंग, बट इट इज देयर, है ना, तो आप इसको चेक कर सकते हो एससीओ यूनिवर्सिटी क्या है एंड ऑल दैट। नाउ एससीओ को बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है और एससीओ के फंक्शनिंग में बहुत सारे चैलेंजेस भी है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। So geopolitical tension among members, India, Pakistan, China, आपको पता है what a mess we are into, है ना। So इसको हम अभी डिबेट नहीं करेंगे, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे करेंगे, बट आप लोग इसको तैयार कर लेना। ह्यूमन राइट कंसर्न है ना, उइगर मुस्लिम पाकिस्तान में बलूचिस्तान को मार रहे हैं, वहां पे आपस में मार रहे हैं एक दूसरे को, सिंध बलूचिस पाकिस्तान पश्तून, है ना। उसके बाद पाकिस्तान बोलता है हम लोग जेएनके में कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, गंदी मचा हुआ है ना, ह्यूमन राइट कंसर्न्स, राइट। सो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, बिकॉज चाइना पाकिस्तान एक साइड हो गया, इंडिया एक साइड हो गया, हम उनकी नहीं मानते, वो हमारे नहीं मानते। सो ऑर्गेनाइजेशन तो बना लिया लेकिन एक दूसरे की बात मानते नहीं है, सो उसका वो एक सैंक्टिटी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस राइवलरी। कॉम्पिटिशन विद अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूरोपियन यूनियन, एशियन हो गया, बाकी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सो देयर इज लॉट ऑफ राइवलरी एंड उसके कारण क्या है, देयर आर लॉट ऑफ इंटरनल पुल एंड पुश, जिसके कारण there are a lot of challenges and there are a lot of criticism also, ठीक है ना। सो ये 4 पॉइंट हो गए, challenges and criticism, there will be more, आप उसको देख सकते हो। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर मतलब इसका भविष्य क्या है। तो भैया एक्सपेंशन ऑफ मेंबरशिप, अभी 9 से जाके आगे बढ़ने का चांस है। ईरान को एक फुल मेंबरशिप मिलने का पॉसिबिलिटी है, जो कि अभी एक डायलॉग पार्टनर है, सो डायलॉग पार्टनर से वो मेंबर बनने का पॉसिबिलिटी है, और भी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन इकोनॉमिक कॉपरेशन, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आई डोंट नो कैसे ही होगा विद एनीवे, एनहांस सिक्योरिटी कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म, ये तो मजाक ही लगता है मुझे। नेक्स्ट इंक्रीज कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल टाई, सो बढ़िया प्रोस्पेक्ट तो बढ़िया लिखे हुए उन्होंने एससीओ के वेबसाइट में। ग्रेटर ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड रिकॉग्निशन, ठीक है भैया, इफ यू कैन अचीव इट, वेरी वेरी नाइस। तो आप मुझे बताना कि what do you think Dr. Jaishankar is going to SCO meeting in Pakistan on 15th and 16th के लिए? It will be a short visit. Will it some way bring some kind of a betterment in the India-Pakistan relationship? क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो इन चीजों के ऊपर अपना एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करना। SCO के बारे में भी अभी क्वाड का भी मीटिंग हुआ था, ब्रिक्स का भी मीटिंग हुआ, जनरल सेक्रेटरी का, अपना यूएन जनरल सिक्योरिटी का भी, इन सब टॉपिक में इसी तरह से आप प्रिपेयर करना और कमेंट में लिखना कि आपका ओपिनियन क्या है। और आपको अगर इसके इसी टाइप के बाकी वीडियो, जो कि मैं बनाता नहीं था लेकिन अभी हम कंपेल टू मेक इट बिकॉज हमारे बंदे कर ही नहीं रहे, मुझे बड़ा दुख होता है। साहस में आते हैं 2 वीक के लिए, मैं उनको इतना प्रेशराइज करता हूँ, एक तो एसएमएल और एसएसबी सही प्रेशर हो जाता है, प्लस ये भी। तो आई होप दिस सीरीज ऑफ वीडियोस विल गिव यू एटलीस्ट एक पोर्शन आप करके आओगे, सो दैट योर ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज इंक्रीज, ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज। किस किस डोमेन में? अवेयरनेस अबाउट द सेल्फ, स्वॉट एनालिसिस, अगर आपको इसमें करना है स्वॉट का तो मुझे बताना, आई विल मेक इट। स्वॉट एनालिसिस, नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफेंस, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, थिएटर कमांड, पता नहीं क्या क्या है ना, इंडियन सोशल इश्यूज। उसके अलावा एसएसबी का प्रोसीजर, उसमें डेल्टा, उस डेल्टा को कैसे भरना, होल लॉट ऑफ थिंग। तो ये 14 डेज में कवर करना प्रेशराइज हो जाता है, बट मुझे करना पड़ रहा है मजबूरी में, बिकॉज सभी लोग 14 में कर रहे हैं। सो मैं अपना काम आसान कर रहा हूँ कि एटलीस्ट कंटेंट बिल्डिंग का काम आप पहले से करके आओ। तो जरूर कमेंट लिख के बताना कि मेरे इस इनिशिएटिव से आपको कोई फायदा हो रहा है। अगर हो रहा है तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप एसएसबी जाने वाला क्यों नहीं कर सकता? आप मेरे पास इंटरव्यू में आओगे, मैं तो ये पूछूंगा
और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दूंगा, आई विल एक्सपेक्ट यू टू डू इट, सो प्लीज डू इट, है ना, लेट्स डू इट द राइट वे, ठीक है ना। सो दोबारा ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड हाइब्रिड बैचेस आर अवेलेबल। अगला बैच इज अवेलेबल ऑन 7th of October, उसके बाद 10th of November। रजिस्ट्रेशन के लिए दिस इज द नंबर, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड प्लीज शेयर इट द फ्रेंड्स। हाइब्रिड क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल, जहां पे आप GTO को 1 वीक में नागपुर में कर सकते हो ऑफलाइन में, बाकी ऑनलाइन में साइक एंड पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हो। सो वी हैव वेरियस मॉडल्स, आप बात कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो इज गिविंग यू सम डायरेक्शन। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।